about the Gaza Strip conflict between Israel and Gaza. So basically, I do follow many news channels and influencers from Israel also. So that way, you know two sides of the story. You don't know only the one side of the story. So when it comes to the other side of the story, the details, even according to the history, they say that's their land, and that goes on and on. So basically, when you hear both sides of the stories, the things become very different. Like there are two different stories now. So if let's suppose we are having an exam, and in the exam you want to choose this topic over the the war that's going on. So which history you should add in considering the country where we are living, we just have to add that, or also add their points? देखिए इसमें सर प्लीज It is a good observation, but you have to understand that you belong to a Muslim country. जो आपकी कंट्री का क्या स्टांस है, आपके कंट्रीमैन का क्या स्टांस है, डेफिनेटली आप उनका पर्सपेक्टिव भी लिखें. जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते. क्लेम तो सबका है, लेकिन जो आपने उसको स्टांस देना, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की पब्लिक सर्विस का मेंबर बनते हुए, हो सकता है आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहें और वहाँ बैठ के आप इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें. नेशनलिज्म हैज़ टू प्रोसीड योर कंट्रीज स्टैंड, योर रिलीजन है. जैसे रिलीजन में जो दूसरे रिलीजन वाले हैं वो अपने रिलीजन पे इतने ही स्ट्रांग होते हैं जितने हम अपने मजहब पर हैं, लेकिन आप उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको छेड़ते नहीं, लेकिन अपनी बात पे स्टिक टू करते हैं. ऐसी सिचुएशन में आपको वो स्टांस लेना है जो आपके मुल्क का, आपकी खारजा पॉलिसी का या आपके बिलीव्स का हिस्सा है, इर्रिस्पेक्टिव के आपको उसमें कोई नई बात पता चली है कि नहीं सारा आलम इस्लाम गलत है और इजराइल सही है. तो वो अपनी जगह हो सकता है, दैट इज़ एवरीबडी इज़ राइट टू अंडरस्टैंड, बट पब्लिक सर्विस के लिए आपको स्टांस रखना है. अब मैं जुबैदा को कहूँगा, वो भी आपसे कुछ बात करें. The teacher here who teaches international relations and who provides some counseling as well. Before we begin to the journey, एक सवाल आप सबसे, do you really know आप यहाँ पे क्यों आए हैं? Do you realize that? Do you have understanding? Whatever you are doing, what exactly you are doing, why are you doing that? So first of all, you need to realize that why we are doing what we are doing. If we have to pursue the CSS examination, why exactly? What's the thing which is pushing us towards this specific journey? Because it's not just confined to secure a one government job. However, it comes with the entire package. Whether you want to serve the country in some capacity, or whether you are just here to secure one job, right? One thing. The second thing is CSS examinations. It equips you with so many things. To begin with, we can say the understanding of legal matters about your very country, and the matters which are pertinent in governance, right? And the matters which deals with the current affairs and international relations, something which you have to deal in your daily life, something which is not confined to the civil services only, right? Then you need to ask that whether you will be able to commit yourself with this journey, whether you will be able to give your 100% to achieve whatever you have set for yourself. Like you have set up, you have set some goals for 5 years, for 3 years, for 10 years. Are you able, are you committed with yourself to get that? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से या इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं. पूछेंगे तो फिर आपको क्लियरेंस होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि क्या करना है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारी आपको थॉट्स आ रही होती हैं. तो जैसे भी जिस किस्म के भी क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं कि आप समझें कि ये पता नहीं कैसा सवाल होगा, ये कोई मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कोई इशू नहीं है. ये एक इंटरेक्टिव सेशन भी है और आपके लिए एक लर्निंग सेशन भी है. तो आप पूछें जो भी आपके जहन में सवाल है. I was having the same thought कि maybe it's not that good question, but there are some studies like different websites पर अगर आप study करते हैं, there's a conflict between the studies.
So sometimes you get confused कि आपको ये pattern use करना चाहिए. Sometimes it's about the pattern and sometimes it's about the history maybe. You know, there are different chunks that are missing maybe, or that are maybe a little bit changed from the reality or maybe what we know. So how do you do that in the exam? अच्छा, इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें, आप जो भी लिखें या जो भी समझें ना, दैट शुड बी जस्टिफाइड विथ रेलेवेंट फैक्ट्स. आज सपोज अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपने कोटेशंस भी उसमें कोट करनी है, एग्जांपल्स आपने देनी है, कुछ केस स्टडीज़ बतानी है, तो दैट शुड बी जस्टिफाइड. ऐसे कोई रैंडम थाट नहीं होना चाहिए, कोई जनरल स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. तो दैट शुड बी फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. दैट शुड जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने जो चीज़ समझी है उसको आप फिर जस्टिफाई भी कर सकें. तो आप, इट डजेंट मैटर कि वेयर डू यू गेट द डेटा फ्राम, आइदर यू गेट इट फ्राम गूगल और यू कैन गेट दैट डेटा फ्राम एनी बुक और यू कैन पुट एनी रेफरेंस. उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से. आप सोर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो कंटेंट है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए. आपका फोकस जो है वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर होनी चाहिए. ऐसी कोई जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देनी, कोई जनरल बात नहीं करनी. उसको प्रॉपर आपने रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना है. वो बात आपकी फिर जस्टिफाइड भी होगी और सही भी होगी और आपको नंबर भी वही चीज़ देगी. कुछ लोग लिखते हैं, पेपर भरते हैं 5-10 पेपर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं डाल रहे, आप अपना नॉलेज नहीं लिख रहे. क्योंकि देखें, इन चीज़ों से जो भी आप थाट्स उसके अंदर लिखेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट योर डेप्थ ऑफ नॉलेज कि आपने कहाँ कहाँ स्टडी की है, क्या क्या चीज़ स्टडी की है. अगर सिर्फ इंटरनेट के ही कुछ चीज़ें आप लिखोगे तो जो बुक्स हैं या रेफरेंसेस हैं या दूसरी कोई न्यूज़पेपर्स हैं, वो रेफरेंसेस अगर आप मिस करेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि आपका, देखें, जो एक नॉलेज का डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है. अगर आपका नॉलेज बेस ज़्यादा ब्रॉड होगा तो वो एक अच्छा एक इम्प्रेशन देगा कि ये बच्चा ज़्यादा पढ़ाकू है, इसने बहुत सारी स्टडीज़ की हुई है. तो आप जो भी चीज़ लिखें उसको सपोर्ट करें मुख्तलिफ बुक्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ. वो कहते हैं. Can I just add an example what I'm अगर कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे आ गया है, कोई करंट इशू पे आ गया है, तो डू यू हैव दिस सफिशिएंट नॉलेज और बैकग्राउंड ऑफ दैट और इशू और नॉट. अगर लेट्स सपोज इस वक्त अगर किसी पैलेस्टाइन या इजराइल की किसी सिचुएशन पे अगर आपको कोई करंट वो टॉपिक बना के ऐसे में दे देते हैं, तो आया आपको क्या बेसिक इशू पता था कि क्या है या नहीं. जब आपको वो बेसिक इशू नहीं पता होगा तो आप अपनी तरफ से लिखना तो शुरू कर देंगे. आपने मीडिया से कुछ बात सुनी, के सोशल उससे किए, लेकिन लॉजिक्स किधर है आपकी राइटिंग. तो ट्राई टू ब्रिंग लॉजिक्स इन योर राइटिंग. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस. एक सादा सा सवाल था, क्लास में आई हूँ, मैंने कहा कि भैया आयत पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें. बिलीव मी, 3 से 4 जुमलों में मैंने, जो कोई स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिनका मैंने चेक करके दिया, दे विल विटनेस ऑन दिस, कि वो मैंने हर चीज अंडरलाइन ही की हुई थी कि आपको लिखना कैसे चाहिए थे, ये क्या बात लिखी है. एंड व्हेन आई हाईलाइटेड देयर मिस्टेक्स, दे देमसेल्फ रियलाइज कि यस, ये बात तो वही है जो हमने लिखी है. तो ज्यादा फेल होने की वजूहात ही यही है कि जिसके दिमाग में जो आता है वो लिखे. ठीक है. मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी. हर कोई उसमें से पढ़ रहा होता है. आप उसमें से नया आपने क्या रिप्रोड्यूस किया है, ये चीज पे आपने गौर फिक्र करना है. ठीक है. तो जब पढ़ें, बुक से पढ़ें. खुद से कोई भी नहीं एक्सपर्ट बन सकता. जाहिर है, मैं अगर आज यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे नहीं कुछ इश्यूज के बारे में पता, तो मैं खुद से उस पर क्या लिख लूंगी. और जब तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा, आपकी अंग्रेजी किसी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती. और अंग्रेजी में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और ये वाली सारी चीजें, यही बेसिक अंग्रेजी ठीक नहीं होती.
लोग ज्यादा सिर्फ इस चीज पे रिलाई कर रहे होते हैं कि जी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, वोकैबलरी बहुत अच्छी है। भाई वोकैबलरी इट इज अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी चीज का सादा जुमला ही नहीं सही बता पा रहे तो वो वोकैबलरी वेयर आर यू गोइंग टू यूज दैट? सो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट दैट एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटीज में आप नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाने का फायदा ये है कि आप जब नोट्स खुद से बनाएंगे, फर्स्ट अगर आपको कुछ बने बनाए नोट्स भी मिल जाते हैं और आपको कुछ बुक्स भी मिल जाती हैं, तो आप उन दोनों चीज़ों, अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके अपना नोट बना रहे हैं, ठीक है ना? तो वो एक अगेन कुछ ओरिजिनल चीज़ होगी, उसमें आप 2-3 बुक से या गूगल से या जहाँ से भी आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं, एक अपना बना रहे हैं आंसर। तो जब आप उसको लिखेंगे तो वो ओरिजिनल भी होगा और वो आप क्योंकि आपने एक दफ़ा नोट्स लिए होंगे तो अपने नोट्स आपको याद करने में भी आसान रहते हैं। इसलिए आपको एक अपना नोट तो बनाना है ना, जिसको आपने बार बार याद भी करना है, रिवाइज भी करना है, तो वो आप जितना अच्छा करेंगे उसमें उतना बेहतर है। हिस्ट्री में जैसे अगर आप उसमें कोर्स डाल दें, डिफरेंट बुक्स के रेफरेंसेज डाल दें, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर नॉर्मली जब आप आंसर कर रहे होते हैं, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, उसमें आप डायग्राम डाल सकते हैं,